friends, how are you? Hi and welcome to our next session. I hope you are all set for attending the session today. Yes, please come on, join in. I'm live now. Yes, please. Hello, how are you all? So today is our immunoboosting session 2. Today again we are going to focus on our breathing exercises and pranayam. And I hope we are all set for that. Just one more minute to go and we'll start with our session. Hello everybody. Okay, it's about time and we are going to start with our session right now. Namaste and welcome to my session today. This is our second session on immunoboosting. We are going to focus on our breathing exercises and enhancing our lung power today. So again, as always, we'll start our session with a little bit of breathing exercises. Start with Sukhasana, back straight, shoulders relaxed, chin parallel to the floor, gaze focused at one point in front of you. Hello Rita Ben. And then gently close your eyes. Focus on your breath. Observe your breath. Just observe the natural movement of your breathing. Observe if your breath is slow or fast. Observe if your breath is heavy or light. Observe if your breath is deep or shallow.
विथ योर नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रहिए, ज़रा भी अपने ब्रीदिंग को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। And then gently open your eyes. Hope you could feel the difference in your breathing. If our breath is shallow, does it require any improvement? Yes Kranti, it would require some improvement, लेकिन ये जो improvement है वो overnight नहीं आएगी. So you keep practicing your breathing exercises and eventually you will reach a stage जहाँ पर आपकी breathing normal से थोड़ी ज़्यादा deep होने लगेगी and धीरे धीरे आप deep breathing के level तक पहुँचेंगे. Hello Kranti, hi Jinal, hi Ragini, hi Pooja. Welcome to the session. Alright, so moving on, हम लोग थोड़ी neck exercise और shoulder exercise करेंगे because obviously the whole body is connected, so सारे body parts lungs से connected है. So let us start. Neck exercise, इसमें हम लोग अपनी breathing को synchronize करेंगे अपनी movement के साथ. So movement और breathing एक साथ होंगे. ऐसा नहीं है कि पहले breathing कर ली, hold करके फिर movement किया. Breathing and movement साथ में होंगे. So let us start doing it. Back straight, shoulders relaxed, clenched नहीं रखने हैं, neck बिल्कुल relaxed, कोई भी pressure नहीं आना चाहिए आपके neck पे. Shoulders, elbows एकदम tight नहीं रखने हैं, एकदम relaxed. And it would be inhaling up, exhaling down. सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखना है. Inhaling up, जितना पीछे जा सकते जाइए. Exhaling down, chin to the chest. आपकी chin को आपकी chest पे लगाना है. पूरा टच नहीं होगा पर कोशिश करनी है और स्ट्रेच फील करना है. Inhaling up, exhaling down. और सिर्फ आपका नेक मूव होगा, नेक के साथ चेस्ट शोल्डर्स कुछ मूव नहीं होंगे. Inhaling up, exhaling down and relax. अभी हम लोग नेक को राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे. इसमें भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन का पैटर्न है. पहले आप जहां हैं वहीं पर इनहेल कीजिए, एक्सहेलिंग राइट, इनहेलिंग बैक, एक्सहेलिंग लेफ्ट, inhaling back, exhaling right, जितना पीछे जा सकते जाइए. Inhaling back, exhaling left, जितना पीछे जा सकते जाइए. Inhaling back, exhaling right. सिर्फ नेक को मूव करना है, आपके शोल्डर साथ में मूव नहीं होंगे, शोल्डर वहीं पर रहेंगे. Inhaling back, exhaling left, inhaling back, exhaling right. Feel the stretch.
आराम से करना है, अवेयरनेस के साथ करना है, स्ट्रेच को फील करना है, हर मूवमेंट के साथ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है इस पर ध्यान देना है। एक्सहेलिंग लेफ्ट, inhaling back, and for the last time exhaling right, inhaling back, exhaling left, inhaling back and relax. Moving on to our shoulders, hands on your shoulders, shoulders relaxed, बिल्कुल एकदम stretched भी नहीं रखने हैं, रिलैक्स रहेंगे, स्टूपिंग भी नहीं रखने हैं, स्ट्रेट एंड रिलैक्स। ऑलराइट, एंड पहले आगे से पीछे की तरफ जाएंगे, आगे एल्बोस टच करने हैं, अगर टच नहीं हो रहे हैं तो जितना मैक्सिमम पास ला सकते हैं उतना पास लेके आना है। हाथ ऊपर जाएंगे तो इनहेल करते हुए जाएंगे, और जैसे ही नीचे आना शुरू होंगे एक्सहेल करेंगे। इनहेल and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। अब रिवर्स करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर जाते वक्त इनहेल, नीचे आते वक्त एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड रिलैक्स। ऑलराइट, ब्रीथ नॉर्मल, बी अवेयर, आपके सांसों पर ध्यान दीजिए और अवेयरनेस लेके आइए कि इस एक्सरसाइज के करने के बाद आपके ब्रेथ में क्या चेंजेस आए हैं। क्या आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, क्या आपकी ब्रीदिंग स्लो हो गई है, या जैसी थी वैसी है, कोई चेंज नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एंड योगा में हमें कहा जाता है देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, जो है वो है, उसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं हमें उस पर फोकस करना है। तो फास्ट ब्रीदिंग राइट है, स्लो ब्रीदिंग रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। फास्ट है तो फास्ट है, स्लो है तो स्लो है, जस्ट ऑब्जर्व। ऑलराइट, अभी हम थोड़ा साइडवर्ड बेंड प्रैक्टिस करेंगे। अगेन हम लोगों ने कल अवेयरनेस की बात की थी, उस अवेयरनेस को हम कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में भी। हर एक एक्सरसाइज, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज आसन हो, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, प्राणायाम हो, जो कुछ भी हम आज के सेशन में करें, फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। पूरे बॉडी के हर एक हिस्से पर ध्यान देंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन से बॉडी पार्ट में क्या फील हो रहा है, बॉडी के कौन से हिस्से में कौन सी संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है, इसको ऑब्जर्व करना है। कोई भी फीलिंग अच्छी या बुरी नहीं है। अगर दर्द है तो है, दर्द बुरा नहीं है, दर्द एक मैसेज है कि हमें उस बॉडी पार्ट पे काम करना है। अगर स्ट्रेच है तो है, अगर स्ट्रेच नहीं है तो कोई बात नहीं। जो भी फीलिंग आए, हर फीलिंग है तो है, ना अच्छी है ना बुरी है। इसी अवेयरनेस के साथ हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे। तो साइडवर्ड बेंड के लिए हम अपने हाथ को अपने नीज के बाजू में रख देंगे फ्लोर पे, और दूसरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे इनहेल करते हुए, और लॉन्ग इनहेलेशन करना है तो हाथ ऊपर आना और बेंड होना साथ में होगा। तो लॉन्ग इनहेलेशन करते हुए बेंड हो जाइए, अब ये बेंड होते वक्त आप आगे की तरफ बेंड नहीं होंगे, आप पीछे की तरफ बेंड नहीं होंगे, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट बेंड होंगे। आपकी कमर
आपके चेस्ट, आपके हाथ सब एक लाइन में होंगे। अगर वो अलाइनमेंट बिल्कुल भी आगे या पीछे है तो उसे सीधा अलाइन कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है एंड कम बैक। उसी तरह दूसरी तरफ हाथों को शोल्डर की लाइन में रखना है। इनहेलिंग हाथ ऊपर, लॉन्ग इनहेलेशन के साथ हमें बेंड होना है। अगेन फॉरवर्ड बेंड आगे नहीं होना है, पीछे बेंड नहीं करना है। यू हैव टू एंश्योर कि आपकी कमर, आपकी चेस्ट, आपका हाथ सब एक ही लाइन में है। एंड स्ट्रेच, ऊपर के हाथ को स्ट्रेच करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। एंड कम बैक। We'll do it one more time. Hand next to your knee and elbow को, अगर elbow जमीन पे टच नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, उसे आप ऊपर भी रख सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप स्ट्रेच कीजिए। अगर आप यहाँ तक ही जा पा रहे हैं तो जस्ट स्टे देयर। यहाँ तक पहुँचना जरूरी नहीं है, जरूरी है स्ट्रेच फील करना। अगर आपको यहाँ तक ही बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो आप यहीं पे होल्ड कीजिए अपनी बॉडी। और अगर नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है तो एल्बोज को जमीन पर लेके जाइए और ऊपर के हाथ को स्ट्रेच करते रहिए एज इफ आप बहुत दूर कहीं अपना हाथ टच करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपके हाथ कानून के हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है एंड कम बैक। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, हाथ को नी के बाजू में, इनहेलिंग हाथ ऊपर, और अगर यहाँ तक ही करके आपको अच्छा स्ट्रेच आ रहा है तो यहीं पर होल्ड कीजिए। और अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो एल्बो को नीचे लेके जाइए। ध्यान रखना है कि आगे या पीछे बेंड नहीं होना है, एक ही लाइन में रहना है। फील द स्ट्रेच। स्ट्रेच फील करना ज्यादा जरूरी है, एल्बो को नीचे टच करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड देन कम बैक एंड रिलैक्स। All right, come back to your normal positions. Breathe normal. अब हम इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग करेंगे। हमने हमारे रिब्स की मदद से लास्ट टाइम ब्रीदिंग की थी, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। तो आज फिर से हम अपने रिब्स को ट्रेन करेंगे टू एक्सपांड एज मच एज इट कैन। इतने सालों से हम शायद उसे कंप्लीट फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें अभी ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाए। सो वी नो व्हाट टू डू। अपने जो हाथ है उन्हें अपने रिब केज पे रखना है। सबसे नीचे जो हैंगिंग रिब्स होती है, हैंगिंग रिब्स के ऊपर आपकी पिंकी फिंगर आएगी, छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर। सो हैंड्स ऑन योर रिब्स। एकदम हल्के से, जोर से दबाना नहीं है रिब्स को, एकदम हल्के से हाथ रखना है रिब्स के ऊपर। एंड देन हाथ मूव नहीं होगा, जो मूव होंगे वो रिब्स रिमूव होंगे, आपके हाथ रिब्स के साथ मूव होंगे। हाथों को यूं मूवमेंट नहीं देनी है, कोई फायदा नहीं है। सो इनहेल करेंगे तो रिब्स एक्सपैंड होंगे, एक्सहेल करेंगे तो रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस रिब के मूवमेंट को फील करना है और रिब्स के साथ आपके हाथ मूव होंगे। इनहेलिंग, एक्सपैंड योर रिब्स, ऑब्जर्व कीजिए रिब्स को एक्सपैंड होते हुए। एक्सहेलिंग, लेट योर रिब्स कोलैप्स। इसमें भी बैक स्ट्रेट और शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। इनहेल करते हुए रिब्स को एक्सपैंड करते हुए फील कीजिए, और जब एक्सहेल करेंगे तो रिब्स को कोलैप्स होते हुए फील कीजिए। Inhaling, expand. Exhaling, collapse.
Inhale and exhale. और अगर आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है तो आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं. आंखें बंद करके अगर आप ये करेंगे तो अवेयरनेस और बढ़ेगी. If you know what to do, you can just keep your eyes closed for better awareness. Inhale and exhale. 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 Breathe normal. Relax your hands. अपने हाथों को रिलैक्स कर दीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए. And gently open your eyes. Alright. Moving on to our next exercise. हाथ सामने on the floor. And inhaling, raise your hands up above the world so high. Keep stretching them towards the sky. And exhaling, relax. Inhaling, raise your hands up above the world so high. Keep stretching your hands towards the sky. Exhaling, relax. Inhaling up. Exhaling down. Inhaling up. Exhaling down. Inhaling up. Exhaling down and relax. Hands in front of you and we'll open our hands. Inhaling, open your palms. Exhaling, bring them close to each other. Inhaling, open it wide and fly. Exhaling, bring them close by. Inhaling, open and fly. Exhaling, bring them close by. Inhaling, open and fly. Exhaling, bring them close by. Inhaling, back. Exhaling, relax and down. Moving to the third exercise in this series, sideward hands. And inhaling up. Exhaling down. Inhaling up. Exhaling down. Inhaling up. Exhaling down.
Inhaling up, exhaling down, inhaling up, exhaling down, and relax. Okay, just a little bit of unwinding. We'll do forward bending. So what we'll do is inhale, hands on the floor, and exhaling, bend forward. Go down as much as you can. If you can, touch your forehead on the floor, and if that is not possible, just stay wherever you can reach. If you can reach this much, just stay. सिर्फ ध्यान रखना है कि नेक के ऊपर प्रेशर ना आए. अगर नेक के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो उसे ज़्यादा ऊपर मत रखिए, रिलैक्स कर लीजिए. अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो थोड़ा और नीचे जाइए. नेक को बिल्कुल मूवमेंट देके रिलैक्स करना है. हाथों के ऊपर प्रेशर लेना है, नेक के ऊपर और स्पाइन के ऊपर सारा प्रेशर नहीं देंगे. कीप गोइंग डाउन एज मच एज यू कैन. और अगर आप पूरा बेंड हो सकते हैं, हिप्स को ऊपर उठाए बिना, अगर आप अपना फोरहेड टच कर सकते हैं फ्लोर को, देन टच योर फोरहेड ऑन द फ्लोर. And relax completely. I'll just do this sidewards. पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है. हाथ भी रिलैक्स कर देने हैं अगर आपका फोरहेड फ्लोर पे टच है तो. Stay there for some time. Breathe normal. नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है और अवेयरनेस के साथ करना है. देखिए आपको कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच फील हो रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट रिलैक्स हो रहा है, सब ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व कीजिए आपके लेग्स में स्ट्रेच आ रहा है या नहीं, थाइज में स्ट्रेच आ रहा है या नहीं. ऑब्जर्व कीजिए आपके लोअर बैक में स्ट्रेच आ रहा है या नहीं, पेट पर कोई प्रेशर आ रहा है या नहीं, ये भी ऑब्जर्व कीजिए. हाथों के ऊपर प्रेशर आ रहा है या नहीं, ये भी देखिए. और अगर हाथों पर आ रहा है तो अपर हैंड्स में आ रहा है, लोअर आर्म में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, या आपके पाम्स पे आ रहा है, सब ऑब्जर्व कीजिए. नेक के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो मूवमेंट देकर उसे लूजन अप कर दीजिए. एंड इनहेल करते हुए कम बैक अप एंड सिट इन सुखासन. रिलैक्स कंप्लीटली. All right. So, अभी लास्ट 1 मिनट के लिए हम डायफ्राम ब्रीदिंग करेंगे. डायफ्राम ब्रीदिंग, हैंड्स ऑन योर डायफ्राम. आपके नेवल रीजन से मेजर करना है. नेवल रीजन से 4 फिंगर्स ऊपर आपका डायफ्राम है. डायफ्राम के ऊपर हल्के से हाथ रखना है, दूसरा हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड, आंखें बंद, और ब्रीदिंग करनी है नॉर्मल ब्रीदिंग. और ऑब्जर्व करना है आपके डायफ्राम की मूवमेंट को. आप ब्रीद इन करेंगे तो डायफ्राम वुड एक्सपैंड, आप ब्रीद आउट करेंगे तो डायफ्राम वुड कोलैप्स. इनहेल करेंगे तो डायफ्राम फूलेगा, एक्सहेल करेंगे तो डायफ्राम सिकुड़ जाएगा. डायफ्राम के इस मूवमेंट पर ध्यान देना है.
अगर किसी का ये उल्टा हो रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि इनहेलेशन के वक्त डायफ्राम अंदर जाता है और एक्सहेलेशन के वक्त बाहर आता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे थोड़ा सा अवेयरनेस लाकर करेक्शन करने की जरूरत है। सो अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट एंड वील ब्रिंग आवर अवेयरनेस टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि हमारा ब्रीदिंग करेक्ट हो। Inhale and make sure your diaphragm expands. Exhale and observe your diaphragm contracting. Inhale करेंगे तो आपका डायफ्राम फूलेगा बलून की तरह, और एक्सेल करेंगे तो आपका डायफ्राम सिकुड़ जाएगा जैसे बलून में से हवा निकल गई। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale and relax. Breathe normal and gently open your eyes. Alright. तो अवेयरनेस की बात हमने जो कल से शुरू की थी उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो कल अवेयरनेस की बात की थी और आज हमने थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस किया है अवेयरनेस का, तो वो अवेयरनेस हम कंटिन्यू करेंगे। और आज से लेकर कल तक 24 आवर्स तक आप अपने आप को, आपकी पूरी दिनचर्या को ऑब्जर्व कीजिए और ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जो आपको लगता है कि आपको चेंज करनी है, उसे नोट डाउन कीजिए। इफ यू वांट टू शेयर इट विद अस, यू आर फ्री टू शेयर इट विद अस। यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स, यू कैन डीएम मी, और अगर आपके पास हमारा नंबर है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी है आप अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड वील डिस्कस एंड वर्क आउट कि क्या है। सो एक छोटी सी छोटी बात जो आपको आपके बारे में अवेयरनेस ला रही है कि आपको ये चेंज करना है, तो हम उसके ऊपर साथ में काम करेंगे। सो डू लेट मी नो एंड वील वर्क टुगेदर। ऑलराइट, ओके जीनल, आई विल गेट बैक टू यू कि ये जो ब्रीदिंग का उल्टा हो रहा है उसको कैसे वर्क करना है। आई हैव योर नंबर, आई विल कॉल यू। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you very much. Gratitude to all of you. आभार, धन्यवाद।